کہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا. میں ان کی نسلوں کو, انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے, ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے. ان کی میں نسلوں کو تباہ کر دوں گا. انتقال کر گئے میرے والد صاحب, اب تو ان کا پیچھا چھوڑو, اب بھی ڈکیت ڈکیت ڈکیت, اور یہ بول رہے ہیں. 19 ستمبر 2011 کراچی ڈیفنس فیز 8 کے سڑکوں کو چیرتی ہوئی ایک وین بڑی سپیڈ سے جا کر کسی بڑے سے بنگلے کے مین گیٹ پر جا کر ٹکراتی ہے اور ٹکراتے ہی وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے. وین کے اندر تحریک طالبان پاکستان کا ایک کارکن بم پروف جیکٹ پہن کر بیٹھا تھا. بلاسٹ ہوئی ان کے گھر کے باہر, تو اس وقت اس کو 3 لوگ جو تھے, جو سوسائڈر تھا, اس گلی کے کونے پہ چھوڑ کر گئے تھے, اور اس کو صرف اتنی گاڑی چلانا آتی تھی جتنے ان کے گھر تک جا سکتا ہے. وہ زیادہ ٹرین نہیں تھا, اس کو یہیں انہوں نے تورنگی میران ٹاؤن کے ایریے میں گاڑی چلانا سکھائی. بلاسٹ ہوتے ہی وین اور اندر بیٹھے شخص کی دھجیاں تو اڑ ہی گئی تھی, لیکن ساتھ ساتھ اس بنگلے کا آدھا حصہ بھی تباہ ہو گیا تھا. اور جس جگہ پر یہ بلاسٹ ہوا تھا وہاں پر 8 فیٹ پھیلاؤ اور 2 میٹر کی گہرائی پر ایک کھڈا بن گیا تھا. 8 لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی تھی اور 2 درجن کے قریب لوگ زخمی ہو گئے تھے, اور اس ایریا پر ہر جگہ پر کالا دھواں اٹھنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس کالے دھوئیں کو چیرتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے بنگلے سے ایک مضبوط جسم کا آدمی باہر نکلا. جب بلاسٹ ہوا تھا وہ بندہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا. دھماکے کی وجہ سے وہ بستر سے گر گیا تھا, لیکن پھر بھی پوری فیملی سلامت تھی. اس کالے دھوئیں کے غبار سے جب وہ شخص باہر آیا تو وہ شخص سفید سوٹ پہنا ہوا تھا, مضبوط جسم اور پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا, پاؤں میں ایک جوتی, ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسری ہاتھ میں ایک پسٹل پکڑا ہوا تھا. وہ شخص بہت غصے میں تھا اور آس پاس موجود لاشیں اٹھانے لگے اور زخمیوں کی مدد کرنے لگے. تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور میڈیا والے اس شخص کا انٹرویو لینے کے لیے موقع پر پہنچ گئے. میڈیا والے وہاں پر پہنچے تو اس شخص نے غصے میں آف کیمرہ دھماکہ کرنے والوں کو ماں بہن کی گالیاں دی. پھر انٹرویو میں کہا کہ دھماکہ کرنے والوں کے نسلیں میں اگلے 24 گھنٹے میں ختم کر دوں گا. یہ چھوٹے معصوم بچوں پہ سوتے وقت آ کے اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب, یہ بتائیے کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ملوث لوگ ہیں ان کو کیا پکڑ لیا جائے گا؟ CID میں جیسے دھماکہ ہوا تھا ان کے ابھی تک نہیں پکڑے گئے. یہ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی میں نسلوں کو ختم کر دوں گا. اور کہتا ہے میں کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا, قیامت تک ان لوگوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا. غصے میں بھڑکتے سفید کپڑوں میں, ایک ہاتھ میں پسٹل تو دوسری ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ہوئے یہ شخص تھا ٹاپ کوپ آف سندھ پولیس پاکستان, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ SSP چودھری اسلم خان. ہم نے بہت سارے سوسائڈل بھی یہاں پہ پکڑے ہیں. بچے جو کراچی کے سوسائڈ کی ٹریننگ کر رہے تھے, مارے گئے تھے, کوئی زخمی ہوئے تھے, وہ سب پکڑے تھے. اور اس ملزم کو وہی چودھری اسلم جس نے کراچی کے گنڈوں اور بدتخوروں کے دلوں میں ایک خوف بنایا ہوا تھا. اور چودھری اسلم کا مقابلہ کوئی معمولی کرمنلز کے ساتھ نہیں تھا, بلکہ انہوں نے ہمیشہ ان کرمنلز کے خلاف آپریشن کیا جن کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا, اور ان کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے پراپر ہیڈ منی رکھی گئی تھی. 30 سے 40 لوگ پکڑے گئے, جن میں ہیڈ منی والے لوگ بھی تھے, 20-20 لاکھ روپے ہیڈ منی والے لوگ بھی تھے. ان سے راکٹ لانچر رحمان ڈکیت کے اوپر 70 لاکھ روپے کی ہیڈ منی رکھی گئی تھی, اور چودھری اسلم وہ شخص تھا جس نے رحمان ڈکیت کو پولیس انکاؤنٹر میں کر 70 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پاکستان سے حاصل کیے تھے. انویسٹیگیشن اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ رحمان ڈکیت. کراچی پولیس نے مقابلے کے بعد لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار اور بدنام زمانہ مجرم رحمان ڈکیت کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا. صرف 70 لاکھ روپے نہیں بلکہ چودھری اسلم نے ایسے درجنوں کرمنلز کا خاتمہ کر کے 9 کروڑ روپے سے زیادہ ہیڈ منی حاصل کی تھی. آپ کو کتنے اب تک ہیڈ منی مل چکے ہیں؟ مجھے بھی 9 کروڑ کے قریب مل چکی ہے. 9 کروڑ اینڈ دیٹ از دا ہائیسٹ. ورلڈ میں اتنی کسی کو نہیں ملی. وہی چودھری اسلم جس کی کہانی تقریباً 13 سال بعد پھر سے منظر عام پر آئی جب بالی ووڈ نے دھرندر نامی ایک مووی بنائی جس میں لیاری گینگ وار کو دکھانے کی کوشش کی, اور اس میں سنجے دت چودھری اسلم کا رول پلے کرتے ہوئے دکھایا گیا. فلم میں چودھری اسلم کی کہانی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن چودھری اسلم کی اصل کہانی بہت حیران کن ہے. سال 2000 میں ایک طرف دنیا بہت ترقی کر رہی تھی تو دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھا.
स्पेशली कराची में हर दूसरे दिन बाद कोई न कोई खुदकुश हमले की खबर सुनने को मिलती थी और लियारी कराची को पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता था। 1980 से लेकर 2011 तक लियारी लोकल गैंगवार्स की लड़ाई में उलझा हुआ था। उससे भी पहले 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लियारी में रहने वाले लोगों को बुनियादी हकूक़ दिए थे। तब से लेकर लियारी में रहने वाले लोग अपनी वफादारी सिर्फ भुट्टो फैमिली के साथ करते थे। इसलिए लियारी को भुट्टो फैमिली के पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी का गढ़ माना जाता था। लेकिन उस वक्त पॉलिटिक्स को चलाने के लिए सिर्फ पार्टी के पॉलिटिशियंस काफ़ी नहीं थे, बल्कि कुछ मसल्स पावर की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए पीपीपी को, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को अपनी मसल्स पावर की ज़रूरत पूरा करने के लिए साथ मिला सरदार अब्दुर्रहमान बलोच और उनके चाचाजाद भाई उज़ैर बलोच का। इन दोनों ने कत्ल करने, हथियार बेचने और शराब बेचने में लियारी की गलियों में एक दहशत बना रखी। और दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन की बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी MQM वो पार्टी था कि उस वक्त कराची के अक्सर इलाकों पर MQM का राज हुआ करता था। और MQM का मसल पावर था अरशद पप्पू। अब MQM और PPP के दरमियान कोई ख़ास क्लैश तो नहीं थी, लेकिन उनके पालतू अरशद पप्पू और रहमान डकैत गैंग के दरमियान लफड़े होते रहते थे। अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के वालिद फैज़ मोहम्मद को कर दिया था और रहमान बलोच के वालिद दाद मोहम्मद के कब्र पर जाकर पेशाब कर दी थी। अरशद पप्पू ग्रुप, उन्होंने मेरा वालिद साहब को तशद्दुद करके बोरी में लाश डाल के मच्छर कॉलोनी मारीपुर रोड में फेंका। और जवाब में रहमान डकैत के लोगों ने अरशद पप्पू के 5 बंदूक दिए थे। इस तरह लियारी में पॉलिटिकल बेस गैंगवार अपने उरूज पर था। फायरिंग, बत्ताखोरी, कत्ल लियारी की एक पहचान बन चुकी थी। एक तरफ रहमान डकैत और उनके चचाजाद भाई उज़ैर बलोच और दूसरी तरफ द गैंग्स ऑफ अरशद पप्पू। ये सब किसी न किसी पॉलिटिशियन से जुड़े हुए थे, इसलिए पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती थी। अब ऐसे हालात में याद किया गया SSP चौधरी असलम को। अब ऐसे हालात में चौधरी असलम को क्यों याद किया गया, ये समझने के लिए चौधरी असलम की कहानी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। साल 1963 में KPK के ज़िला मानसरा के एक छोटे से गाँव दतियाल में एडवोकेट मोहम्मद अकरम खान को बेटा हुआ। बेटे का नाम असलम खान रखा गया। असलम खान 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। उस वक्त उनकी फैमिली कराची शिफ्ट हो गए थे। कराची में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1987 में असलम खान पुलिस में एज SI सब इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्ट हो गया। इस तरह असलम खान पुलिस में SI के तौर पर काम करने लगा और 1994 में वो थाना इंचार्ज और इंस्पेक्टर बन गया। और इसी साल 1994 में असलम खान की पुलिस में बेहतर कारकर्दगी की वजह से वहाँ पे मौजूद लोग उन्हें चौधरी के नाम से जानने लगा। तो असलम खान ने उसी साल अपने नाम के साथ चौधरी लगा दिया। और उस वक्त कराची में MQM के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम थे। MQM के ऊपर ये इल्ज़ाम थे कि वो लोगों को कत्ल करते हैं और उसको बोरियों में फेंक देते हैं। और MQM की सबसे बड़ी दुश्मनी थी लियारी में रहने वाले बलोचों के साथ, इसलिए MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दी गई और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे चौधरी असलम खान। MQM के खिलाफ मल्टीपल पुलिस ऑपरेशंस किए गए थे। बहुत से लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे और बेशुमार लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। लेकिन 1999 में चौधरी असलम ने MQM के सबसे बड़े कारकुन सालात मिर्ज़ा को पकड़ने के इनाम में चौधरी असलम को प्रमोशन मिली और उन्हें एज ए DSP प्रमोट कर दिया गया। सालात मिर्ज़ा को अरेस्ट करने के बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई और उन्हें 2015 में फांसी दी गई। क्योंकि सालात मिर्ज़ा कोई आम शख्स नहीं था, उसके ऊपर दर्जनों कत्ल के इल्ज़ाम थे और वो पाकिस्तान में एक वांटेड पर्सन बन चुका था। अब 1999 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस अपने उरूज पर था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और शुरू में MQM को जनरल मुशर्रफ की सपोर्ट मिलने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद लियारी से मार्शल लॉ के खिलाफ काफ़ी एहतजाज मंजर-ए-आम पर आने लगा। इसीलिए अब पुलिस ऑपरेशन MQM के खिलाफ करने की बजाय मुशर्रफ ने लियारी में रहने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि मुशर्रफ चाह रहा था कि लियारी से आने वाली आवाज़ें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब चौधरी असलम के ऑपरेशन की जिद में था लियारी में रहने वाले कुछ गुंडे जो अवाम को मार्शल लॉ के खिलाफ उकसाता था। और 2005 में चौधरी असलम ने लियारी में रहने वाले सबसे बड़े डॉन शुएब खान को अरेस्ट कर लिया गया और शुएब खान को अरेस्ट करने के इनाम में चौधरी असलम को ASP बना दिया गया। और उसके बाद चौधरी असलम ने लियारी में अमन कायम करने के लिए लियारी में मौजूद गैंग्स को ख़त्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और उस टास्क फोर्स में पाकिस्तान भर से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किए गए
जो इनकाउंटर में बड़े स्पेशलिस्ट थे। फिर लियारी में हर दूसरे दिन बाद पुलिस ऑपरेशंस होने लगा और साल 2006 में चौधरी असलम ने लियारी के सबसे बड़े डॉन रहमान डकैत को अरेस्ट कर लिया। और फिर रहमान डकैत को अरेस्ट करके जेल में रखना भी कोई आसान काम नहीं था। कुछ अरसा गुजरने के बाद रहमान डकैत ने जेल के अंदर मौजूद अमले को खिला पिलाकर वो जेल से फरार हो गया। रहमान डकैत की जेल से फरार होने की खबर सुनकर चौधरी असलम को बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि मैं नेक्स्ट टाइम चौधरी असलम को अरेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि सीधा गोली मारकर उसे फायर करके ख़त्म कर दूंगा। चौधरी असलम अपनी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी थी रहमान डकैत की, लेकिन उतने में 2006 में एक और मुसीबत आई। चौधरी असलम ने कराची के सबसे बड़े डॉन माशूक ब्रोही और उसके साथी रसूल बख्श ब्रोही को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया। बड़े क्रिमिनल्स में उसका शुमार होता था माशूक ब्रोही खास तौर पे। इस एनकाउंटर के बाद चौधरी असलम के ऊपर 2 इल्ज़ामात लगे। एक इल्ज़ाम यह था कि जो साथी था रसूल बख्श ब्रोही वो एक मजदूर था और बेकसूर शख्स था, और दूसरा इल्ज़ाम यह था कि ये एनकाउंटर ही एक कंप्रोमाइज एनकाउंटर है, ये एक प्लांटेड एनकाउंटर था। इन 2 इल्ज़ामात की बुनियाद पर चौधरी असलम को सस्पेंड कर दिया गया पुलिस फोर्स से और उन्हें जेल भेज दिया गया। 16 महीने जेल में गुजरने के बाद फाइनली चौधरी असलम को जमानत मिली और उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर रिहा होने के बाद चौधरी असलम दोबारा रहमान डकैत को प्लानिंग शुरू कर दी गई और फाइनली 8 अगस्त 2009 की रात चौधरी असलम ने रहमान डकैत और उनके 2 साथियों को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया। कराची पुलिस ने मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार और बदनाम जमाना मुजरिम रहमान डकैत को उसके 3 साथियों समेत हलाक कर दिया है। रहमान डकैत के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 70 लाख रुपए हेड मनी रखी गई थी, इसलिए चौधरी असलम को रहमान डकैत को ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 70 लाख रुपए भी दिए गए और चौधरी असलम का नाम सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी वायरल होने लगा। उसके बाद 2012 में चौधरी असलम का नाम फिर से सुर्खियों में आने लगा, क्योंकि 2012 में चौधरी असलम और उनकी टीम ने लियारी में रहने वाले गुंडों के खिलाफ 12 दिनों तक मुसलसल पुलिस ऑपरेशन जारी रखा। 12 दिनों तक ऑपरेशन जारी रखने के बाद भी कोई ख़ास नतीजा नहीं मिला, उल्टे में 12 पुलिस ऑफिसर्स गए और फाइनली चौधरी असलम को ऑपरेशन बंद करना पड़ा। लेकिन चौधरी असलम की ज़रूरत यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मालूम हो चुका था कि चौधरी असलम एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई कि पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द थे, जो शरपसंद जमातें हैं, उनको पाकिस्तान से ख़त्म करने का। और उस वक्त भी दीगर जमातों के साथ साथ टीटीपी को सबसे ज़्यादा तशद्दुद पसंद जमात समझी जाती थी पाकिस्तान के अंदर। और चौधरी असलम ने 2 से 3 ऑपरेशन टीटीपी के ख़िलाफ़ कर चुके थे और कुछ लोग उनके जा चुके थे और अक्सर लोगों को गिरफ्तार कर चुका था। दहशतगर्द जमातों और टीटीपी के खिलाफ 2 से 3 ऑपरेशन करने के नतीजे में फाइनली 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेसवे पर चौधरी असलम को गाड़ी समेत बम से उड़ा दिया गया। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए। 100 से ज़्यादा पुलिस इनकाउंटर्स करने वाला और 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा हेड मनी लाने वाला एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। दुनिया भर में स्पेशली पाकिस्तान में होने वाली ऐसी केसेस को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो करोड़ बार अगर चौधरी मिले दुनिया में दोबारा जिंदा तो मैं कहूँगी मुझे असलम जैसा ही मर्द